Hello there. Today we will be exploring and discussing blood sugar management and maintaining healthy blood glucose level. With the rise of chronic health conditions, understanding how to manage these conditions naturally is becoming more important than ever. In Ayurveda, diabetes, also known as Madhumeha, arises from an imbalance in the body's doshas, particularly kapha and pitta. The imbalance can disrupt the body's ability to regulate glucose, leading to elevated blood sugar. To deepen our understanding, we are joined by renowned Ayurvedic expert Dr. Hari Mohan Chandola and Dr. Chandrakant Katiyar, who will guide us through the Ayurvedic insights for managing diabetes effectively. So, hello, doctors. Yeah, hello, how are you? Hello, I'm good. How are you all? Yes, pleasure to be here with you. My pleasure is all mine. So, Professor and Dr. Hari Mohan Chandola is a distinguished scholar in Ayurveda, holds a MD and PhD and diploma in yoga from the reputed Banaras Hindu University. He is formerly Dean of Faculty of Ayurveda University at Jamnagar, Gujarat, and the chairman of the Institutional Ethics Committee and member of the Research Committee at Uttarakhand Ayurveda University in Dehradun, and has more than 40 years of experience in recognition of his remarkable contributions to the field of Ayurveda. Dr. H.M. Chandola has been awarded the Lifetime Achievement Award in 2014 and the Life Tree Award in 2008. We also have Dr. Katiyar here. He is Dr. Chandrakant Katiyar is a renowned Ayurveda expert with over 30 years of experience. He holds a PhD in pharmacology and neurology and a MD in Ayurveda from Banaras Hindu University. Dr. Katiyar is a member of the Ayurvedic Pharmacopoeia Committee and the Herbal Committee for Indian Pharmacopoeia. And currently he is an advisor consultant to Jandu Advanced Ayurvedic Research Center at Imami, where he blends the ancient wisdom of Ayurveda with modern medicine to drive innovation in healthcare. So I'm so thankful, Dr. Chandola and Dr. Katiyar, for that you all have joined us today. So in this session, we'll be uncovering how Zandu's Ayurvedic products offer a unique approach to managing blood sugar levels. So, firstly, my first question is to Dr. Chandola. So, there are various options, products, formulations available in the market. Similarly, Zandu also offers a range of products in diabetes range like Arishta, the tonic, tablets, and juice. So, how do these products help in diabetes? You see, this blood sugar level disturbance is nicely covered under the broad heading of Prameha in Ayurvedic literature. Prameha and Madhumeha, both the terminologies are referred for this problem. अब यहाँ पे सबसे मुख्य बात यह है, चाहे वो बात टॉनिक की हो, जूस की हो या टैबलेट की हो, अगर हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट है, वेल एंड गुड, क्लासिकल है और साथ में साइंटिफिक लाइन पे उस पर वर्क किया गया है और एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स हैं, उसका कोई भी फॉर्मुलेशन डेवलप किया जाए वो तो बहुत अच्छी बात है. इसलिए आपने अभी बात करी डायबिटीज अरिस्ट या टॉनिक की, तो ऐसा Right. फॉर्मुलेशन जो नंबर वन शुगर फ्री हो, उसमें कोई एडेड शुगर ना हो, कोई उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो, और साथ में चूंकि आयुर्वेद में जो इसकी बात कही गई है, ब्लड शुगर के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म दोनों का डिस्टर्बेंस है, इसलिए ब्लड शुगर के साथ साथ फैट मेटाबॉलिज्म की भी केयर करनी बहुत ठीक है. ऐसी हर्ब फॉर एग्जांपल गुडुची टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसे हम गिलोय भी कहते हैं, कालमेघ, हल्दी है, मधुनाशिनी जिसको हम मेषशृंगी या गुड़मार कहते हैं, इसके अलावा करेला, जामुन, नीम, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंसुलिन सिक्रीट करने वाले जो बीटा सेल हैं उसके रीजनरेशन पे भी इनमें से कुछ हर्ब्स का एक्शन है. साथ में इंसुलिन जो रिलीज भी हो रहा है लेकिन बॉडी टिश्यूज उसके प्रति सेंसिटिव नहीं है, तो सेंसिटाइज करना बॉडी टिश्यूज को ये भी बहुत जरूरी है. इंटेस्टाइन से जो हर्ब ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करे वो भी उसमें बहुत कारगर है. और साथ में अगर कोई रसायन हर्ब्स उसमें हैं, फॉर एग्जांपल अश्वगंधा,
तो फटीग का प्रॉब्लम है, वीकनेस का है, एक्सेसिव यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम थर्स्ट का प्रॉब्लम है, तो इन सब की केयर ऐसे फॉर्मुलेशन से हो जाती है। और इस अरिस्ट में तो गुडूची, हल्दी, ये सब चीजें हैं, करेला है, जामुन है, नीम है, हल्दी है, पुनर्नवा और गोखरू है। पुनर्नवा गोखरू का किडनी के ऊपर बहुत अच्छा एक्शन है, इसलिए किडनी की हेल्थ भी इसमें बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। और जो बार बार बाथरूम विजिट करने का जो प्रॉब्लम पेशेंट को होता है, उससे जो है पेशेंट निजात पा सकता है, एक्सट्रीम थर्स्ट से निजात पा सकता है, और जो वीकनेस फटीग का प्रॉब्लम है उससे भी निजात पा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये डायबिटीज अरिस्ट या टॉनिक जो है, इसमें ये सारी हर्ब्स हैं, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। आंवला भी है, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। 1 दर्जन संतरे में जितना विटामिन सी होता है उतना एक सिंगल आंवले में होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है डायबिटीज अरिस्ट का, बहुत अच्छा है, एविडेंस बेस्ड है। ओके, सिंस डॉक्टर कटियार आप एक रिसर्चर है, आपको इसमें क्या ऐड करना है? So, Dr. Chandola has already spoken about the product. So let me share with you that at Jhandu Advanced Ayurvedic Research Center, we focus on 3 things: efficacy, safety, and quality Right. of the product, and innovation. So innovation क्या है कि जैसे प्रोडक्ट है, इट इज फर्मेंटेड प्रोडक्ट, तो फर्मेंटेशन नीम, जामुन एंड करेला, तो हिंदुस्तान में 90% जिसको डायबिटीज है वो खाता है, लेकिन कितना खाएं, कैसे खाएं, खाने के बाद खाएं, खाने के पहले खाएं, हम जो दवाई डायबिटीज की ले रहे हैं उसका इंटरेक्शन क्या है उनको पता नहीं है। तो इसलिए फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू झंडू ने इस प्रोडक्ट को पहले फर्मेंट किया। फर्मेंटेशन ध्यान रखा, जैसे डॉक्टर चंदोला ने बोला कि उसमें हमको शुगर नहीं यूज करना है, तो शुगर फ्री प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन is an innovation what Jhandu our research center has done, and we have developed this product. और इस प्रोडक्ट को नॉट ओनली दैट, इसके अंदर हम लोगों ने इसकी स्टडी भी कराई, सेफ्टी स्टडी भी कराई, एफिकेसी भी कराई। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इस प्रोडक्ट को लेगा तो खाने के बाद जो पीकिंग होता है, हम लोगों ने इसको स्टडी पब्लिश किया है इन इंटरनेशनल जर्नल ऑन द एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट, कि इसको लेने के बाद पोस्ट मील जो पीकिंग, खाने के बाद जो ब्लड शुगर एकदम से वो बढ़ता है, फिर नीचे कम हो जाता है, एकदम बढ़ जाता है, तो उसको लिमिट में रखता है, ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। उसका असर ये होगा कि जो उसको कोई लॉन्ग टर्म में इसको लेगा तो उसको इसके डायबिटीज़ के या ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे या डिलेड होंगे। और इसका कंट्रोल, ये भी जो लोग, ऐसे लोग भी हैं जो 15-20 साल से डायबिटिक है, दवाई खा रहे हैं लेकिन उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनके अंदर इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी है उसको या तो डॉक्टर आपकी डोज बढ़ाएगा, तो इसको अगर लेंगे तो डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम डोज में काम करता है। कई बार मेन दवाई की डोज कम भी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। तो इस प्रोडक्ट में सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी भी है, तो इसकी सेफ्टी भी है। क्वालिटी के लिए हम लोग उसको हेवी मेटल, पेस्टिसाइड, माइक्रोबियल लोड, जो भी क्वालिटी के पैरामीटर्स हो सकते हैं, एट झंडू वी आर टेस्टिंग एवरी प्रोडक्ट फॉर क्वालिटी इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्ट आल्सो। तो ये डायबिटिक के लिए टेस्टेड भी है, सेफ भी है, एफिकेशियस भी है, और क्लिनिकल ट्रायल और प्री और फार्माकोलॉजिकल स्टडीज से इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है। तो ये प्रूवन, इट इज वेल प्रूवन प्रोडक्ट साइंटिफिकली। जैसे कि अभी आपने ये स्पेसिफिक आयुर्वेदिक हर्ब्स का हाईलाइट किया है पॉइंट, लाइक इट इज फॉर्मुलेटेड एज इन, फॉर एग्जांपल अरिष्टा, what is the authentic process of arishta followed by zandu? So किसी भी अरिष्टा क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा मेडिकेटेड वाइन, तो मेडिकेटेड वाइन जो होती है उसको फर्मेंट करते हैं, तो फर्मेंटेशन के लिए उसके अंदर जैगरी या चीनी मिला करके उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। लेकिन इसको हम लोगों ने क्या किया है, झंडू एट अवर एडवांस्ड आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, वी हैव डेवलप्ड अ न्यू मेथड, innovative method of fermentation, where neither we are using sugar nor we are using jaggery, because the product is targeted for diabetics। जिसपे हम लोगों ने अपना एक नया मेथड फॉलो किया है, उसका हम लोगों ने पेटेंट भी फाइल किया हुआ है, और वो पेटेंट वो उसकी वजह से क्या, हमारे प्रोडक्ट में शुगर नहीं है। और प्रोडक्ट और दूसरी अच्छी बात क्या है कि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि जो कड़वापन होता है नीम का, करेला का, वो कड़वापन भी कम हो जाता है।
या करीब करीब इस टाइप के हो तो प्रोडक्ट बिकम वेरी टेस्टी। उसके अंदर इसमें हम लोगों तो नीम जामुन होते हुए भी प्रोडक्ट इज टेस्टी एंड एफिकेशियस। और दूसरा क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं दे बिकम ड्रग, और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में फास्ट होता है अरिस्टा फर्मेंटेशन होने की वजह से। तो वी फॉलो ऑथेंटिक प्लस इनोवेटिव प्रोसेस। इसमें हम लोगों ने ऑथेंटिक में इनोवेशन ऐड किया है, तो इट इज ऑथेंटिक एंड इनोवेटिव प्रोसेस। Yes, that is so interesting. Abhi, Dr. Chandola, I have a question for you. How should one consume Zandu diabetes tonic? अब देखिए क्यारा जी, एक हाँ। स्टैंडर्ड मेथड है, कोई भी अच्छा। आशा और इस बेस्ड फॉर्मुलेशन हो तो जनरली वी रिकमेंड 2 tablespoon of the Arista with equal quantity of water after lunch and dinner. अब चूंकि ये थिक है तो इसको मिला करके 1 गिलास पानी में डाला और तब पी लिया तो उसका ऑप्टिमम बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है इसलिए पानी में इसको डिसॉल्व कर लेना चाहिए एंड इट कैन बी टेकन आफ्टर मील। 2 tablespoon with equal quantity of water in a glass of water, and then it can be taken after meal. And it can be taken minimum 3 months it can be taken. अभी जो डॉक्टर कटियार जी भी बात कर रहे थे, I have seen that research paper published in Journal of Case Report. It is in the authorship of Dr. Ashok Jain, Dr. Katiyar and many other authors. और उसमें उन्होंने उसको मिनिमम 3 मंथ रखा है और साथ में ब्लड शुगर को भी कम कर रहा है और उसके साथ साथ HbA1c पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। अदरवाइज इट कैन बी टेकन लाइफ लॉन्ग। ये डिजीज तो ऐसी है जिसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी होती है एंड डिपेंडिंग अपॉन इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड शुगर लेवल उसका ड्यूरेशन उसके हिसाब से तय कर सकते हैं, मिनिमम 3 मंथ। अदरवाइज इसको आगे भी लंबे समय तक लेते रहें तो कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड भी नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू यू डॉक्टर कटियार, इस पे कुछ रिसर्च हुआ है क्या? हाँ, तो जो हमने पहले बोला एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी तीनों रिसर्च बेस्ड है। Yes. जैसे CGMS हम लोगों ने कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग किया हुआ है पेशेंट्स को ये देने के बाद, और देखा उसको देने के बाद पेशेंट्स में जो ब्लड शुगर है वो एक लिमिट है उसके अंदर ही रहता है। दूसरा, अगर आप ये माने कोई भी कार्बोहाइड्रेट वो शुगर बढ़ाने के लिए उसको पहले ब्रेक डाउन होना पड़ता है शुगर में, सिंपल शुगर में, तो एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एमाइलेज। तो ये प्रोडक्ट देने से उस एंजाइम की एक्टिविटी वो कम हो जाती, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाता और इसलिए वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ा पाता। तो ये हम लोगों ने, हमारे पास अपनी लेबोरेटरी है बायोवेंसी लैब, हमने वहाँ पर ये टेस्ट किए हैं और हॉस्पिटल में जैसे भी डॉक्टर चंद्रा ने बोला, डॉक्टर जैन के साथ हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। आप आजकल तो काफ़ी पेशेंट जानते हैं डायबिटीज़ के लोग, काफ़ी ऐड भी आते लोग लगा लेते हैं। यहाँ पर एक सेंसर होता है, सेंसर लगाने के बाद आप उसको एवरी 2 मिनट टेस्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने वो भी किया हुआ है। तो उसके बाद हमने प्रूव किया कि पोस्ट मील पीकिंग, खाने के बाद जो एकदम से मील पीकिंग होता है वो इससे नहीं होता, उसको कंट्रोल करता है और बेटर कंट्रोल। ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हमने जो 15-15 सांस ले रहे थे, उनका कंट्रोल नहीं हो रहा था, अब वो उसी रेंज के अंदर 70% तक आ गए। सो देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है इसको भोजन के बाद 2 बार लेने से और ये इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है और ये रिसर्च के द्वारा इसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी तीनों प्रूवन। Okay. Thank you. Got it. So again coming back to Dr. Chandola. So ये जो डायबिटीज टैबलेट्स है, what makes Zandu diabetes tablets so special? What you are referring, that tablet is actually the product of Salacia oblonga. आयुर्वेद में इसको सप्तरंगी और सप्त चक्र दोनों नाम से कहा गया है और मोर देन 100 स्पीसीज इसकी हैं और इंडिया में जो है वो सेलेसिया ओब्लोंगा एंड सेलेसिया रेटिकुलेटा ज़्यादा पाई जाती है। तो दिस टैबलेट इज एक्चुअली द फॉर्मुलेशन ऑफ सेलेसिया ओब्लोंगा और 240 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे वो टैबलेट की इसकी डोज रिकमेंड की गई है। और इसकी जो रूट का जो है ये पाउडर होता है, वैसे लीव्स पे भी स्टडी एडवांस सेंटर जो अभी डॉक्टर कटियार जी ने कहा उस पर भी हुई है, बट द पोटेंट एक्शन इज इन द रूट पाउडर एंड दिस इज एक्चुअली द रूट पाउडर।
और काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं ब्लड शुगर पे, HbA1c पे, और इसके साथ साथ इसके ऊपर किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब के ऊपर इसका बहुत प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। और जो सिंथेटिक कन्वेंशनल मेडिसिन से जो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एंड आईज का जो रेटिना है, उसको जो ब्लड सप्लाई है, उसको ये बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज़ अ सेफ ड्रग and helpful in preventing the complications also. So it is basically the Salacia oblonga powder in the tablet. अच्छा, तो सिमिलरली डॉक्टर कटियार आपको कुछ ऐड करना है इसमें? या तो इसमें हम लोगों ने कुछ और भी रिसर्च किया था, जिसमें हम लोगों ने इसको डायबिटीज इंड्यूस करके और उसके बाद ये देखा कि अगर उसके अंदर इसको ना दिया जाए और दूसरे ग्रुप में इसको दिया जाए तो जो किडनी डैमेज होता है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है इसको देने से। और इसलिए इसका जो प्रोटेक्टिव एक्शन है, साइड इफेक्ट जो होते हैं, कॉम्प्लिकेशन, उसको प्रोटेक्शन में काम करता है। दूसरा, जैसे ब्लड शुगर, एक तो फास्टिंग होता है, हम डेली चेक कर सकते हैं। दूसरा एक होता है उसको बोलती है HbA1c। ये 3 महीने का एक एवरेज दिखाता है ब्लड शुगर का। तो जिन पेशेंट्स का 8.02 था उसका कम होकर के 7.03 तक हो गया कंट्रोल। अब वो 8.02 था, वो एक दिन से नहीं था, वो बहुत दिनों से स्टैंडर्ड मेडिकेशन खाने के बाद था। तो इसको ऐड करने से सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी हुआ और वो फर्दर 7.02 तक हो गया। उसको और आगे देंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जैसे ने बोला कि इसकी क्वालिटी कैसे, ठीक है, सेलेसिया तो बहुत कंपनी शायद बनाती होंगी, लेकिन जैसे आप पैरासिटामॉल लेते हैं तो 500 mg लिखा हुआ है, तो उस पर 490 mg होगा, 510 mg होगा। हाउ डू यू नो इन दिस केस? तो इसके अंदर एक मार्कर कंपाउंड होता है, फाइटोकेमिकल रेफरेंस कंपाउंड, उसको बोलते हैं सेलेसिन। तो हम लोग उस कंपाउंड को उसमें टेस्ट करते हैं हर एक टैबलेट में, कि वो पार्टिकुलर क्वांटिटी में अवेलेबल में उसमें प्रेजेंट है, जिससे कि बैच टू बैच उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि उसकी एफिकेसी उसी कंपाउंड से आ रही है। इसलिए इसकी क्वालिटी पर हम लोगों ने, वो कंपाउंड मार्केट नहीं मिलता, तो उस कंपाउंड को हम लोगों ने खुद ही आइसोलेट किया और इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने उससे स्टैंडर्डाइज किया, उसी को हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो देयरफॉर क्वालिटी इज देयर, एफिकेसी इज देयर, और सेफ्टी के लिए इसको हम लोगों ने HTTP किया। और दूसरा, ये इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स अलग से भी पब्लिश हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको, हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट सेलेसिन। So therefore, we are very much assured about the efficacy through quality of the product, because Zandu is known for quality, and that quality we are that. So every product tested for heavy metal, for pesticide residues, for microbial load, and for marker compound also in this case. Right. So I think that assures the consumers कि आपके जो प्रोडक्ट ले रहे हैं झंडू का, वो बिल्कुल सेफ है, एफिकेशियस है और quality maintained, which is very important. Yes. I think Dr. Chandola, everyone wants to know what are the ingredients used in these tablets. As Dr. Katiyar and I also in the beginning mentioned, ingredient में इसमें यही है, बस सिंगल है ड्रग सेलेसिया ओब्लोंगा। और जैसे डॉक्टर कटियार साहब ने कहा कि जो इसका मेन जो एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल है वो इसमें इन्होंने रखा है। और ये इसके अलावा सेलेसिन के अलावा और भी इसमें कंपाउंड हैं। और जो अभी डॉक्टर कटियार साहब जब मेंशन कर रहे थे, तो आई वाज रिमेंबरिंग दैट डॉक्टर कटियार दैट आर्टिकल पब्लिश्ड इन अप्लाइड मेडिकल जर्नल, जिसमें ये सब चीज़ें हैं कि नेफ्रॉन्स के ऊपर इसका प्रोटेक्टिंग इफेक्ट है। तो जैसे आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में अल्टीमेटली पेशेंट चला जाता है रीनल फेल्योर में, तो किडनी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेलेसिया पाउडर की जो ये टैबलेट है, तो इट हैज़ ए नेफ्रॉन प्रोटेक्टिंग इफेक्ट, किडनी के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग इफेक्ट है। और कुछ आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट पे भी जो काम हुआ, तो इट इम्प्रूव्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, तो कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी इसके अंदर है। रेटिना को भी जो ब्लड सप्लाई हो रही है और ब्रेन को जो सप्लाई हो रही है, तो इसलिए स्ट्रोक को भी और रेटिनोपैथी को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड शुगर और HbA1c पे तो इसका एक्शन है ही, लेकिन साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन को जो प्रिवेंट करने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
हैंस पे जो मुर्गियों पे भी जो इसमें स्टडी हुई रेट्स के अलावा, तो ये ओबेसिटी को भी जो है कम करता है, फैट को भी कम करता है। तो आई थिंक दिस डॉक्टर कटियार, सेलेसिया इज अ वंडरफुल हर्ब, वंडरफुल क्या हर्ब। एंड एज ए एड ऑन थेरेपी भी आप इसको ले सकते हैं, कोई भी कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहा है उसके साथ ले सकते हैं। तो सिंथेटिक ड्रग के जो अनेक अनवांटेड इफेक्ट हैं उसको भी ये काउंटर रेट करेगा। और जैसा डॉक्टर कटियार ने कहा कि जो मॉडर्न ड्रग पे डिपेंडेंसी और डोज बढ़ने का जो इशू होता है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। और साथ में जो सिनर्जेटिक एक्शन के अलावा अनवांटेड इफेक्ट जो सिंथेटिक ड्रग के उनको काउंटर रेट करेगा। तो मॉडर्न ड्रग की डोज भी लेटर ऑन कम हो सकती है। अधिकतर तो भारत में केसेस टाइप 2 हैं जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो टाइप 1 केसेस भी हैं जो इंसुलिन पे हैं, उनको भी अगर हम सपोर्टिव आयुर्वेद कुछ दें तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी कम हो Right. सकती है। और साथ साथ इंसुलिन से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी काफ़ी हद तक हम कोप अप कर सकते हैं, काउंटर रेट कर सकते हैं। बराबर, तो इट इज़ अ वंडरफुल ड्रग, सेलेसिया इज़ अ वंडरफुल ड्रग। तो ये टैबलेट Yes. जो है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है डायबिटिक पेशेंट्स को। चाहे तो अगर अर्ली स्टेज का पेशेंट है, बिगिनिंग में है, तो अकेले इस टैबलेट से भी काम चल सकता है। और अगर कोई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहा है या इंजेक्टेबल इंसुलिन ले रहा है, उसके साथ सपोर्टिव भी लगा देंगे, उसमें भी ये हेल्प करेगा मॉडर्न ड्रग के एक्शन को पोटेंशिएट करने में, उसकी डोज को कम करने में और उसके अनवांटेड इफेक्ट को काउंटरेट करने में। Right, got it. Since backed by Jantu's 110 plus years of legacy in Ayurveda, it ensures trust, reliability, and expertise in natural healthcare solutions. तो डॉक्टर कटियार, क्या आप बता सकते हैं कि in depth efficiency of the product? What is the efficiency? So efficiency of the product is the same as the efficacy. That's what I have already discussed with you. इसको जैसे हम लोगों ने इसके एफिकेसी फॉर हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, लिवर सपोर्ट, किडनी सपोर्ट, और उसके लिए जैसे ने बोला कि नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्लड में कन्वर्ट होते हैं सिंपल शुगर में, और वो जाकर के ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इसके अंदर तो इसमें एक एंजाइम होते हैं कुछ, तो ये जो होता है उस एंजाइम का एक्टिविटी को कम कर देता है। और जब एंजाइम एक्टिविटी को कम करता है तो वो सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और इसलिए ये उसको बढ़ाता है। ये स्टडी हम लोगों ने, ये रिसर्च हम लोगों ने अपनी लैब में किया। उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर कुछ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी किए, और जैसे ने बोला इसके बाद ये HbA1, HbA1c जो ब्लड शुगर का पैरामीटर होता है लॉन्ग टर्म का कंट्रोल का, वो भी इसने कम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो भी डॉक्टर चंद्रा ने भी आपको बताई, और हम लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, इसको देने से जो हमने डायबिटीज इंड्यूस किया, उसके बाद वो जो डायबिटीज के जो जिसमें इंड्यूस किया उसके अंदर किडनी डैमेज बहुत ही कम हुआ और काफ़ी डिलेड हुआ। तो इसको देने से ये बहुत बड़ा, आपको बता आज की तारीख में भारतवर्ष में किडनी डैमेज खाली डायबिटीज से नहीं होता। आज का हम लोग इतने केमिकल खा रहे हैं, इतने इन चीज़ों में, सुबह आप टूथपेस्ट से लेकर के रात तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, सब आपका लीवर इज नॉट एबल टू मेटाबोलाइज लॉट ऑफ देम। सो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एडिशनल बेनिफिट आपको किडनी से प्रोटेक्शन के लिए दे रहा हो, उस तरह के प्रोडक्ट काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। और ये इसलिए इसको हम लोगों ने एफिकेसी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, ये सेफ्टी भी हम लोगों ने इसको टेस्ट किया। तो R&D की तरफ वी ऑलवेज डिसाइड कि जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट, जैसे ने बोला इसके ऊपर ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को पिकअप किया था। और जैसे ने बोला इसके अंदर इसको स्टैंडर्डाइज कैसे करें, सबसे आसान होता है आपने एक स्टैक लिया और बना दिया उसका टेबलेट, बट हाउ डू आई नो ये वर्क करेगा? तो हमको उसके अंदर कंपाउंड पता होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पहले रिसर्च किया क्या कंपाउंड है, उस कंपाउंड को इंश्योर किया। तो इसमें हमारा जो रिसर्च है वो कंपाउंड सिलेक्शन का है, कंपाउंड आइसोलेशन का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, एफिकेसी का है और सेफ्टी का है। ये तीनों मिला करके, बिकॉज कंज्यूमर, हमारा जो कंज्यूमर है उसको बेस्ट एंड सेफ प्रोडक्ट दे, ये हमारी पूरी प्रयास है हमारा। और सबसे बड़ी बात एक और है डॉक्टर कटियार साहब की, जैसे हम देखते हैं कि डायबिटीज में सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल ही डिस्टर्ब हो ऐसा नहीं है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ साथ जो डिसलिपिडीमिया है
जिसमें कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी डिस्टर्ब है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उस लेवल पे भी जो है डिसलिपिडीमा लेवल पे भी सेलेसिया जो है वो काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके हिसाब से डॉक्टर चंडोला मेन बेनिफिट्स क्या है ये डायबिटीज टैबलेट के, आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? वही सब है, देखिए जो अभी तक चर्चा हुई कि ये इंसुलिन को भी सिक्रीट कर रहा है, पेंक्रियास के जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के जो बीटा सेल है वहां से ये इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा है। जो अवेलेबल इंसुलिन है और हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज करने की स्थिति में उतनी सक्षम नहीं है, तो सेंसिटाइजेशन का भी ये काम सेलेसिया करता है। और जैसा डॉक्टर कटियार ने कहा कि जो एंजाइम की चेन है उसको इनहिबिट करके और उस ग्लूकोज को जो कार्बोहाइड्रेट में जो ये शुगर को जो ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो जल्दी से एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो डिलेड एब्जॉर्प्शन उस लेवल पे, तो जीआई ट्रैक्ट लेवल पे भी काम कर रहा है, पैंक्रियास के लेवल पे काम कर रहा है, और लीवर में जो ये ग्लूकोटॉक्सिसिटी और लाइपोटॉक्सिसिटी होती है, ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन है, तो वहां पे भी जो है उस लेवल पे भी जो है ये काम कर रहा है। और साथ साथ जो अभी डॉक्टर कटियार ने कहा कि किडनी के, हार्ट के, रेटिना के ऊपर जो इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके प्रिवेंशन में भी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इन टेकिंग केयर ऑफ डिस्टर्ब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, उसके द्वारा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। और जो HbA1c की बात हुई जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, उस पर भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। वेरी नाइस ड्रग, वेरी वेरी गुड ड्रग, सेफ ड्रग, can be taken. So again, Dr. Chandola, we for diabetics, you know, like I'm a diabetic, it is a little, we are afraid कि juice and drinks क्या पीना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या आप बताएंगे कि what are the best drinks or juices to manage sugar levels? मैं फिर कहूँगा, देखिए जैसे ये ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी ड्रिंक हो, कोई भी जूस हो, नंबर 1 इट शुड बी शुगर फ्री, उसमें कोई एडेड शुगर ना हो, कोई आर्टिफिशियल उसमें फ्लेवर ना हो। आप देखिए ट्रेडिशनली पुराने जमाने में क्या अभी भी लोग करेले का जूस पीते हैं, जामुन है, करेला है, जामुन है, नीम है, ऐसा जूस जो एंटी डायबिटिक जिसके अंदर प्रॉपर्टी हो, है ना, तो उसमें करेला है, जामुन है, साथ में मेथी भी है, आंवला अपने आप में जूसी, आजकल सीजन आंवले का है, मैंने अभी कहा कि इट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, तो आंवला है। तो हम ऐसी सब चीजें, फलों की बात करिए तो देखिए एप्पल है, जूसी भी है, फाइबर भी उसमें बहुत है, और उसका कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो हमें ऐसे खाद्य और पदार्थ लेने हैं, ऐसे जूसी सब्सटेंस लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो और जिनका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा पेय जिसमें करेला हो, जामुन हो, आंवला हो, एप्पल हो, और साथ में उसमें आपने अगर मेथी का भी फ्लेवर दे दिया, दालचीनी में यूज होती है तो फ्लेवर भी हो जाएगा, और दालचीनी अपने आप में एंटी डायबिटिक है। तो ऐसा चीजों का कॉम्बिनेशन जहां मिल जाए, ऐसा जूस मिल जाए, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्यों डॉक्टर कटियार साहब? और रेडीमेड अवेलेबल हो तो सोने में सुहागा। बिल्कुल ठीक। कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई मेक इट एट होम, इतना मुश्किल होता है ये इंग्रेडिएंट्स ढूंढना, क्या कहना चाहते हैं आप उस पे डॉक्टर चंडोला? हाँ, तो डायबिटीज केयर जूस इज अवेलेबल, दैट कैन बी टेकन विदाउट एनी प्रॉब्लम, इट इज रेडीमेड अवेलेबल. Okay, got it. But now I want to ask. I think Jhandu is manufacturing that. Okay, wow. I want to ask both of you all now, how would it benefit a diabetic and like कैसे तरीकों में वो benefit करेगा? तो इसमें वो इसी तरीके से बेनिफिट करेगा कि इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी कम करेगा, बीटा सेल को स्टिमुलेट करके इंसुलिन रिलीज करेगा, बॉडी टिश्यूज को सेंसिटाइज करेगा सर्कुलेटिंग इंसुलिन के प्रति, और लीवर में जो ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का, उस एक्शन को भी प्रमोट करेगा। और अगर एप्पल जैसा है जो कि अपने आप में फुल विद न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करेगा, तो कुल मिला के डायबिटीज में बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा इस डायबिटीज केयर जूस का। डॉक्टर कटियार आपको क्या कहना है इसमें?
इसमें देखिए, इस जूस में झंडू डायबिटीज केयर जूस में 2 तरह के इंग्रेडिएंट हैं। एक है मेजर इंग्रेडिएंट, दूसरा है सिनर्जिस्टिक सपोर्टिव इंग्रेडिएंट। राइट। मेजर है करेला, जामुन, आंवला और नीम, और सपोर्टिव में एप्पल, दालचीनी, मेथी। नो, दालचीनी और मेथी भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं डायबिटीज कंट्रोल के लिए। डॉक्टर चंदोला का तो पूरा एमडी और पीएचडी का थीसिस दालचीनी के ऊपर है कि राइट। इसका मैकेनिज्म क्या है, उसके कंपाउंड क्या है। और मेथी भी इंटरनेशनली वेरी वेल नोन फॉर प्री डायबिटीज, फॉर डायबिटीज। और ये भाई जो ब्लड शुगर जैसे ने बोला, इनका मेजर मोड ऑफ एक्शन वही होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट से जो शुगर का कन्वर्जन होता है उसके एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, तो देयरफॉर वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। बराबर। वो उसका मेजर एक्टिविटी है, और उसकी वजह से ये सपोर्टिव भी काम करते हैं, सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होती है। तो सिनर्जिज्म क्या होता है? जैसे 1 + 1 2, नो, सिनर्जिज्म माने 1 + 1 = 3। हाँ, तो मतलब जो अगर एक टैबलेट से एक कोई काम हो रहा है, मान लीजिए 10% कम हो रहा है, उसकी डोज बढ़ा के 20% होगा, लेकिन अगर सिनर्जिज्म है तो उसको 30% होगा। बराबर। तो इसलिए ये जो फाउंडेशन है, इसके अंदर जो आपके दालचीनी और मेथी ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, करेला, जामुन, नीम के साथ, ये उसकी सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी है, ये उसकी एफिकेसी को सिनर्जाइज करते हैं। तो दो वर्ड होते हैं, सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक जो एक्टिविटी कम करते हैं। दूसरी बात आपको पता है कि जिस आदमी को डायबिटीज होगा उसको साथ में ब्लड प्रेशर भी होगा, उसके साथ में वो दवाई 10 दवाई और भी खा रहा होगा। तो उसके लिए जो भी जूस है, जो भी दवाइयां हैं, ये उन दवाओं से इंटरेक्शन ना हो रहा हो, इसको बोलते हैं हर्ब ड्रग इंटरेक्शन। तो झंडू एडवांस आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर इज द ओनली सेंटर इन दिस कंट्री जहां हम हर एक प्रोडक्ट को हर्ब का ड्रग से इंटरेक्शन टेस्ट करते हैं। इसलिए अगर आप साथ में कोई दवाई खा भी रहे हैं तो हमको पता है अगर वो इंटरेक्शन होगा, हम उसमें वो इंग्रेडिएंट डालेंगे ही नहीं। ये फैसिलिटी इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं। ये खाली ये रिसर्च हम लोगों ने काफी रिसर्च के बाद इसके अंदर, तो हमारा चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो अरिस्टा हो, चाहे वो यो, हम सभी प्रोडक्ट हम लोगों ने, तो ऐसा नहीं खाली डायबिटीज के लिए, वो कोई दवाई ब्लड प्रेशर के लिए भी खा रहा होगा, कोई दवाई शायद वो हार्ट के लिए भी खा रहा होगा। तो ऐसी 15 से 20 जो दवाइयाँ साथ ले सकते हैं, उनके साथ भी इसका इंटरेक्शन हम लोगों ने देखा हुआ है कि इसका इंटरेक्शन नहीं होता या मिनिमल है ना। तो वो एक एडिशनल सेफ्टी फीचर है और एडिशनल साइंटिफिक रिसर्च इसमें हम लोगों ने इसमें किया हुआ। तो देयरफॉर ये जो जूस है, ये जो होम मेड में आप उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उतना क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं, ना क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और दूसरा इसके अंदर जो हम लोगों ने एक इसका जो हम लोगों ने नींबू और सेब वगैरह डाला हुआ है, ये उसके टेस्ट को भी इम्प्रूव करता है। हाँ, तो देयरफॉर अगर आप केवल करेला, जामुन, आंवला, नीम का जूस लें, उसको टेस्ट करिए और साथ में इसको टेस्ट करिए, आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। This will be not only tastier but more efficacious also. Which is actually a very good point. बिल्कुल। डॉक्टर चंदोला, क्या आप बता सकते हैं हमें कि what is the process? Is there a process to consume the juice? देखिए, अब जो आयुर्वेद में जो स्वस्थ व्रत और सदव्रत की चर्चा की है, उसका पालन करते हुए आदमी उठे, अपना जो है रूट का टाइम, उसमें एक 30 ml जूस ले, बहुत आनंद रहेगा। नाइट में भी एक डोज ले ली एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फिजिशियन, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सुबह शाम दोनों टाइम भी ले सकते हैं 30 ml, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा इफेक्टिव है। और अभी जब डॉक्टर कटियार जी उसकी बात कर रहे थे ड्रग इंटरेक्शन वाली, तो सेलेसिया की तो मेटफॉर्मिन के साथ स्टडी हुई और एट पार रिजल्ट पाए गए, कहीं कोई ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं था। इसलिए ये आयुर्वेद की ड्रग की एक ब्यूटी है, और स्पेशली जो हर्बल बेस्ड फॉर्मुलेशन है कि उसमें उतना रिस्क नहीं रहता है, और जहाँ कहीं रिस्क लगे भी तो थोड़ा अगर टाइम का गैप कर दिया तो कहीं कोई रिस्क रहता ही नहीं है। तो जूस तो एक न्यूट्रिटिव भी है और डायबिटीज के लिए मैं समझता हूँ एक रसायन भी है अपने आप में।
हाँ बिल्कुल। बराबर। अभी to both the doctors, there are some questions from the audience. So पहला सवाल आपको जो पूछना है, can Ayurvedic treatments complement conventional diabetes medication? Oh yes, why not? बिल्कुल दे सकते Okay. हैं, श्योर। कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. Second question from the audience is, how does Ayurveda approach diabetes differently from conventional medicine? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। देखिए, आयुर्वेद में कहा है कि इसमें 3 दोषों का इन्वॉल्वमेंट है। बिगिनिंग में कफ दोष इन्वॉल्व है और लेटर ऑन पित्त और वात भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और क्रमशः है कफज पित्तज वातज प्रमेय प्रेसिपिटेट करते हैं। उसी वातज प्रमेय का एक उपभेद है जिसको हम मधुमेह कहते हैं, और इसके साथ 10 दूष्य इन्वॉल्व हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र अंबु वसा लसिका एंड ओज। तो चिकित्सा क्या है? संप्राप्ति विघटन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पैथोजेनेसिस इज द ट्रीटमेंट। तो यहाँ तो हमको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ साथ फैट मेटाबॉलिज्म को भी जो है वो ट्रीट करना है, और इसमें हमको ये देखना है कि पेशेंट की अग्नि ठीक रहे, ताकि जो हिस्टो टॉक्सिक सब्सटेंस आम जो प्रोड्यूस हो रहा है विच इज द रूट कॉज ऑफ डिजीज, तो उसकी भी केयर हो। तो आयुर्वेद का तो अप्रोच एकदम अलग है। वी टेक केयर ऑफ द डिस्टर्ब दोष, disturbed dusya, the body tissues, the dhatus. We take care of the agni and we take care of the all the vital organs. जहाँ ज़्यादा ज़रूरी हुआ ऑर्गन स्पेसिफिक रसायन लगा दिया। इसीलिए जो अभी अरिष्ट की टैबलेट की और जूस की चर्चा हुई, उसमें ऐसी ऐसी हर्ब्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए रिजुविनेटिंग वर्क कर रही हैं। लीवर पे भी काम कर रही हैं, किडनी पे भी काम कर रही हैं, हार्ट पे भी काम कर रही हैं, रेटिना के लिए भी है और पेंक्रियास के लिए भी है। तो इसलिए आयुर्वेद का तो पूरा का पूरा अप्रोच होलिस्टिक है। वी टेक बॉडी एज अ होल, सो वी टेक केयर ऑफ द दोष, धातु, अग्नि एंड द ऑर्गन्स। राइट। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा इसके अंदर। Yes, जैसे yes, आपको एक मैं और यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि आयुर्वेद डायबिटीज को पूरे शरीर का रोग मानता है, खाली ब्लड शुगर का नहीं मानता है ना। तो आयुर्वेद के क्योंकि रसायन, जैसे डॉक्टर ने बताया रसायन चाहिए, तो आयुर्वेद ने तो इवन गाय का जो घी होता है, गाय के घी को एज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट किया है डायबिटीज। क्योंकि जो रस की जो क्षय होता है वो अल्टीमेटली जाकर के नीचे तक अफेक्ट करता है। तो इसलिए डायबिटीज का पूरा कॉन्सेप्ट और मधुमेह का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है। इसीलिए आयुर्वेद का इसको ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो ये काफी हद तक कॉम्प्लीमेंट करेगा जो आज की तारीख में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो वो कोई कहीं से इसका विरोध नहीं है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तीसरा सवाल है, आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस टू बी अवेयर ऑफ व्हेन यूजिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स फॉर डायबिटीज? So far as herbs are concerned, ऐसा कोई साइड इफेक्ट डायबिटीज के रेफरेंस में रिपोर्टेड नहीं है, और जो स्टडीज भी हुई हैं उसमें कहीं कुछ ऐसा है नहीं। कहीं अगर किसी को ऑलरेडी हाइपर एसिडिटी है तो फ्लैचुलेंस हो जाए, कोई जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो जाए, तो उसमें इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से उसको मील से पहले या बाद में दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ऐसा कोई इस्टेब्लिश्ड उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ऐसा रिपोर्टेड नहीं है अभी तक। ओके। और फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या डायबिटीज खत्म हो सकता है क्या? इज इट रिवर्सिबल? अब देखिए, मेरा तो ये मानना है कि डायबिटीज में तो देखिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने लिया, ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गया या HbA1c कंट्रोल में आ गया तो आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो वो इरेडिकेट हो गया। यू विल हैव टू कंटिन्यू द मेडिसिन लाइफ लॉन्ग। डोज का कम बढ़ती होना वो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से निर्णय लिया जा सकता है, एंड इट इज अप टू द विजडम ऑफ द फिजिशियन कि कैसे उसको पेशेंट को सलाह देनी है। इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट को भी देखना है, एक्सरसाइज को भी देखना है, योगा वगैरह को भी देखना है, ये सब देखना। देखिए, आयुर्वेद ने 3000 साल पहले लिखा था कि मधुमेह कष्ट साध्य असाध्य में इसकी गलती थी। कष्ट साध्य ने बहुत डिफिकल्टी से होता है और कुछ एक केसेस में असाध्य भी होता है, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। तो इसको डायबिटीज मतलब ये नहीं है कि किसी का जीवन खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है
और लेकिन कोई एक है इसको रिवर्स करते हैं, रिवर्स नहीं हो सकता इसको, Okay. लेकिन मैनेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। दवाई का डोज कम कर सकते हैं, योग वगैरह एक्सरसाइज करने से भी काफी अच्छा काम है। जैसे रिसर्च हुआ, उसने बोला कि रिसर्च की जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसकी वजह से जो ब्लड शुगर कम होगा वो, और प्लस मेटफॉर्मिन से जो कम होगा, तो मेटफॉर्मिन नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पर फिजिकल एक्सरसाइज, इससे ब्लड शुगर कम होता है, उसके बाद मेटफॉर्मिन आता है। सो देयरफॉर लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज में। इस बात को आयुर्वेद ने भी माना और इस बात को आज भी लोग मान रहे हैं कंटेम्परेरी, इसलिए दोनों एक दूसरे कंटेम्परेरी। आपको डाइट कंट्रोल भी करना होगा, एक्सरसाइज भी करना होगा, मेडिसिन भी लेना होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना होगा, है ना, सब चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट। लेकिन टेंशन नहीं लेना, डायबिटीज को टेंशन नहीं लेना। टेंशन अगर लिया तो डायबिटीज बढ़ेगा। इसलिए बिल्कुल योगासन करिए, प्राणायाम करिए और तनाव से दूर रहिए। वो तो है। आपको क्या लगता है जहाँ कि कहीं जरूरत हो तो अपना बायो प्यूरिफिकेशन, पंचकर्म प्रोसीजर वो भी कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी अगला सवाल ऐसा है, कुड दिस बी अ क्योर परमानेंटली? वो इशू अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि परमानेंटली क्योर नहीं, इट कैन बी कंट्रोल्ड। आपको लाइफ लॉन्ग उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज भी करना है, डाइट कंट्रोल को भी देखना है, स्ट्रेस को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो कंट्रोल आ गया तो जड़ से साफ हो गया। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, सिंस आप दोनों का एक्सपर्टीज है, आप ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट काइंड ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल शुड वन फॉलो? मैं तो ये कहूँगा कि एक तो डाइट ऐसी हो, हमको ये देखना चाहिए भी प्रधानमंत्री जी हमारे श्री अन्न को काफ़ी प्रमोट किया, मिलेट ईयर के रूप में भी लास्ट ईयर मनाया गया। तो जितना भी हमारे यहाँ श्री अन्न या मोटा अनाज है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जौ की तो इतनी महिमा आयुर्वेद में गाई गई है, तो इसमें पेट भी जल्दी भर जाता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, कैलोरी भी कम होता है। तो मोटे अनाज पे जोड़ दें, है ना। और ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो और जिनका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो, उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, और इसके साथ साथ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमको अपने हिसाब से जो है हल्का फुल्का व्यायाम, ब्रिस्क वॉकिंग, आयुर्वेद में तो कहा गया कि 100 योजन पेशेंट प्रमेह रोज चले, ब्रिस्क वॉकिंग, इस पर बहुत जोर दिया गया है। और जितना भी ये विभिन्न प्रकार के योगासन है, मेडिटेशन है, शवासन है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, इसका भी प्रयोग करना चाहिए ताकि जो है हमारे ऑर्गन्स फिट रहे, इंसुलिन सिक्रीट होता रहे, ग्लूकोज अपटेक होता रहे, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज होता रहे स्केलेटल मसल्स में, ये भी देखना चाहिए। और अपना जैसा कटियार साहब ने कहा कि स्ट्रेस फ्री रहना है, तो अपने अपने हम लोग रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ें ताकि हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना रहे। वी आर अवे फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्योंकि ये सब ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। तो ये सब रहेगा, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड मेडिकेशन एज पर योर प्रकृति। भोजन भी अपनी प्रकृति के हिसाब से करें तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर कटियार साहब कुछ ऐड करें? ऐसे मैं दो चीज में ऐड करूंगा। एक तो ये है कि भोजन को पकाया कैसे जाए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए पुराने जमाने में हम लोग गांव में जब चावल बनता था ओपन में, भगोने में, तो उसका पहले स्टार्च निकाल दिया करते थे, हाँ, मार निकाल देते, ठीक है, उसके बाद चावल खाते थे। अभी मैंने कुछ रिसर्च अपने घर में किया कि मैं आजकल कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है, तो उसको देखा मैंने कि अगर आप कुकर में बना हुआ राइस यूज करेंगे तो ब्लड शुगर बहुत फास्ट बढ़ता है। लेकिन अगर जो पुराने जमाने जो बनाते थे उसका मार निकाल दें चावल का, तो उसमें दाल डाल दें, जो मर्जी डाल दें, तो ब्लड शुगर बजाय बढ़ने के घटने लगता है, मतलब स्टेबल है। इतना ज़्यादा फर्क। तो इसलिए भोजन पकाया कैसे जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार्च जो है कम से कम एसिमिलेबल हो। इसलिए जो चावल वगैरह उसको बनाने के लिए उसमें स्टार्च निकालना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद करेंगे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले हम लोगों की मदर गांव वगैरह में हमेशा निकालती थी। तो जब से कुकर आया, प्रेशर कुकर, जब से लोगों ने मतलब उतना मेहनत ना करना पड़े इसलिए कर लिया। लेकिन आज भी अगर सही तरीके से देखिए, बंगाल वगैरह में जहाँ पर लोग नॉर्मली राइस ईटर्स है, तो एक तो पुराना चावल यूज करते, ना ही नहीं करते। आयुर्वेद ने बोला है कि पुराना चावल वो मधुमेह के लिए सुखद है, नया चावल सुखद नहीं है। उसका कारण ये है कि उसके अंदर स्टार्च ज्यादा होता है, इसलिए होता है।
तो इसलिए अच्छा। भोजन को पकाया कैसे जाए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी बहुत जरूरी इसीलिए है। हमारे यहाँ कटिहार साहब पहाड़ों में ये झिंगोरा चावल बहुत खाया जाता है जी उसका, और अनपॉलिश चावल। पहाड़ों में मडवा बहुत यूज होता है, जिसको साउथ में रागी कहते हैं। हाँ तो ये सब हाँ डायबिटीज में बिल्कुल। बहुत अच्छे हैं, बहुत आजकल अच्छे। तो आजकल असम से भी चावल आने लगे हैं, असम चावल आने लगे हैं, रेड राइस भी आने लगा है। ये सब तो चावल तो देखिए इंडिया में मेरे ख्याल से राइस ईटर ज्यादा है बजाय व्हीट ईटर्स के। तो इसलिए इसलिए वो जो जो राइस ईटर्स है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि उन लोगों को भी अपना जो भोजन को बनाने का पकाने का तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका था उसी को फॉलो करना चाहिए। Right. That was actually truly enlightening. Big thank you to Dr. Chandola and Dr. Katiyar for sharing such valuable insights. I'm certain our audience will benefit greatly from this information. These seemingly minor symptoms, such as relief from frequent urination, combat fatigue, alleviates thirst and hunger, may be subtle indicators of a larger underlying problem. This session has given a deep dive beyond the obvious signs and made us understand how to recognize early warning signals of diabetes and provide highly relevant evidence backed information. We have Jandu teleconsultation. Please call us at 1-800-572-8000. It is open 9 a.m. to 6 p.m. from Monday to Sunday, or you can also email at care@zanducare.com to get personalized consultation with our reputed doctors. All information between the patient and doctors is highly confidential and will not be shared with any third party. We would also like to extend our gratitude to everyone who joined us today, and we hope you found the session very informative. As we wrap up, don't forget to follow us on our social media platforms and visit our website for regular updates on more live sessions and tips for an Ayurvedic living. Stay tuned for our next session on 10th February, wherein we will be discussing liver health, and we look forward for having you all with us. Thank you once again. थैंक यू। थैंक यू। Thank you.